I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. This video is about stereochemistry. I'm going to start a series of lectures regarding stereochemistry. In lectures को देखने के बाद you will get your maximum concepts regarding stereochemistry. So let's have a look what we have in our first lecture. In this video, you are going to study about the basic concepts of stereochemistry. You will study what is PPL. You will know about the enantiomers, chiral center, and chirality. So first, let's have a look what is stereochemistry. Stereochemistry is the study of 3D structure of a molecule. जब हम stereochemistry के बारे में पढ़ते हैं तो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स when any molecule or substance have the same molecular formula लेकिन उसके एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकें तो उसके वो एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स उसके आइसोमर्स कहलाते हैं. हम कह सकते हैं कि आइसोमर इज the different arrangement of the molecules which are having the same molecular formula. So when we talk about the isomerism, there are three type of the isomers which are being exist. The first one is constitutional isomers, and then second one is the configurational, and then conformational isomers. When we talk about the constitutional isomers, ये वो isomers होते हैं जिसमें molecule की constitution थोड़ी सी फर्क होती है. Molecules are having the same molecular formula लेकिन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं. यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ऑफ C4H10. इन द फर्स्ट कंपाउंड इट इज द स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज ब्यूटेन, एंड इन द सेकंड कंपाउंड दिस इज द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इन व्हिच द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज अगेन 4 एंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the number of carbon and hydrogen in both these compounds are same, but the structural arrangement of the molecule is changed. So that's why both molecules have different physical and chemical properties and have different name. The name of the compound A is butane and the name of the second compound is 2-methyl propane. When we look at the configurational isomers, ये वो isomers होते हैं जिसमें molecules अपनी अरेंजमेंट चेंज करते हैं like in constitutional isomers, but to change of one isomer to the other isomer is that there is a breaking and remaking of bonds occurs between the atoms. So the configurational isomers are different from the constitutional isomers by making and breaking of the new bonds. Constitutional isomer में हमें making और breaking of the bond नहीं देखने को मिलता, but in the configurational isomer there is a remaking and breaking of the bonds between the two isomers. So here we have also the example of, so here we are having a molecule in which we have 1, 2, 3, 4 carbon and 3 to 5, 6, 7 and 8 hydrogens. Look at this molecule, 1, 2, 3, 4 carbons and 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogens, but the arrangement of the molecule around the carbon is changed. This is the 1-butane, this is the cis-2-butane, and this is the third structure formula which can be drawn of this molecule, which is the trans-2-butane. इन तीनों isomers के बनने में making and breaking of the bond has been takes place. So these three molecules or these three isomers have the different physical and chemical properties. When we talk about the conformational isomers, they are also known as optical isomers, and in this specific lecture we are going to concentrate on the conformational isomers or optical isomers. इसको हम stereochemistry में study करेंगे. We will see what are optical isomers and what is the role of the optical isomers in stereochemistry. So when we talk about the optical isomers, these are the isomers which have effect on the PPL. What is PPL? Plane polarized light. So these are the isomers which
are affecting the plane polarized light, and these isomers have the same physical and chemical properties. उनके कुछ chemical properties ऐसी होती हैं जो differ करती हैं, but most of the chemical properties are same of all the isomers, and their biological properties differ from each other. So let's have a look what is PPL and how the optical isomers affect the plane polarized. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है. दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट जिसमें तमाम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं. जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट के आगे निकोल प्रिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है प्लेस करते हैं, तो ये निकोल प्रिज्म इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, और अब इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी. दीज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हर साइड में मूव कर रही हैं, निकोल प्रिज्म ने उसको एक बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर दिया है. अब ये बीम ऑफ लाइट हमारे पास पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को इस लाइट के सामने यहाँ पर प्लेस करेंगे, दिस इज द ट्यूब विच इज हैविंग द सब्सटेंस, जिसको हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आगे रख के चेक करना है. अब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सब्सटेंस में से गुजरेगी तो वी आर हैविंग अ मीटर एट द एंड जिसकी नीडल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैक्टोज है एंड वी आर हैविंग डेंशोमर. हमारे पास यहाँ पर फर्ज कर लें उसका R आइसोमर था एंड इन दिस वी आर हैविंग S आइसोमर, और हमारे पास एक और ट्यूब है जिसमें हमने इन दोनों आइसोमर्स की एक स्पेसिफिक रेशियो, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू मेक 40-60 ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, उसमें हमने R और S को मिक्स कर दिया. सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ द टू आइसोमर्स. इसमें हमने एक किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के दोनों आइसोमर्स को मिक्स कर दिया. अब इस मिक्सचर को हम यहाँ पे पीपीएल लाइट के सामने रखेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं. इन केस ऑफ अ 40-60 सॉल्यूशन, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट नीडल को क्लॉकवाइज घुमाती है तो कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे. And in the second case, if the plane polarized light rotate the molecule anti-clockwise, then compound will again optically active and will be levorotatory. अब इस अमाउंट का अंदाजा लगाना कि इस मिक्सचर में हमारे पास कितना डेक्स्ट्रोरोटेटरी था और कितना लीवोरोटेटरी था, इसको हम प्रैक्टिकली ही इसका पता चला सकते हैं. हम थ्योरेटिकली इसके पता चला सकते हैं कि कौन सा आइसोमर हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी था और कौन सा आइसोमर हमारे पास लीवोरोटेटरी था. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, फर्स्ट करें कि हमारे पास 60 जो था मॉलिक्यूल वो हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, उसने मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज घुमाया, और जो 40% था वो हमारे पास ये डेक्स्ट्रो था और ये लीवो था, इसने 40% घुमाया. तो जो मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो ये वाला पोर्शन देगा. ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. इफ वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स इन आवर सैंपल, तो उस मिक्सचर की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी इफेक्ट उन दोनों मिक्सचर की रोटेशन को कैंसिल करके जो हमारे पास बाकी रिजल्ट आएगा वो होगी. तो 20% विल बी द ऑप्टिकल एक्टिविटी शोन बाय द मॉलिक्यूल. अब ये कौन सी होगी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगी. तो मॉलिक्यूल हमारे पास जो ओवरऑल मिक्सचर होगा वो 20% डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा. अब जितना ज्यादा ये एंगल ऑफ रोटेशन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल ग्रेटर द एंगल ऑफ रोटेशन greater will be the optical activity. इसको हम specific rotation कहते हैं. Specific rotation, this is the specific rotation of any molecule. Specific rotation, इसको calculate करने के लिए we are taking the specific rotation is equal to the angle of rotation divided by length multiplied by concentration. So what is this length and what is this concentration? This length is the length of the tube. The length of this tube will always be in decimeter, 1 decimeter, and the concentration will be 1 gram
per mole. This is the standard unit for the sample which we are putting in this tube to measure the optical activity. ठीक है, तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी चीज की प्लेन पोलराइज्ड लाइट से मेजर करते हैं. अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता और मीटर की रीडिंग हमारे पास 0 रहती है, तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. एंड इफ दैट कंपाउंड इज मूविंग द नीडल टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा. और अगर वो मॉलिक्यूल नीडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वो लीवो रोटेटरी होगा. अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स है तो दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो का इफेक्ट कैंसिल करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट उस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी. अगर हमारे पास कोई रेसिमिक मिक्सचर होगा तो उस रेसिमिक मिक्सचर में दोनों आइसोमर 50-50 होंगे और रेसिमिक मिक्सचर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता और उसको सीधा पास होने देता है. जो हमारे पास मीटर की नीडल होगी वो 0 पे ही रहेगी, बिकॉज बोथ आर 50-50 इन रेशियो और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे एंड मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. वो तमाम मॉलिक्यूल जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कायरलिटी होती है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते. हमारी यूनिवर्स सिमेट्रिकल है. हमारी यूनिवर्स में तमाम चीजों की कोशिश होती है कि वो सिमेट्री को अटेन करें और स्टेबल हो. जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट्स अनसिमेट्रिकल हैं देन दे आर causing optical activity. So chirality is the reason of optical activity. Unsymmetry is the reason of optical activity. So what is chirality basically? Chirality को Handness के रूल से explain करते हैं. Handness is, for example, this is our hand and we are going to place a mirror. हमारे हाथ का mirror image कुछ इस तरह से होगा. Lady finger will be there, then this ring finger, middle finger, index finger, and here we will have a thumb. So these are the mirror images of each other. अब हैंडनेस के रूल के मुताबिक हम अपने हाथों को किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं तो हम कहीं पे भी अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर इम्पोज नहीं कर सकते. अगर हम इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, इफ वी आर डूइंग लाइक दिस, तो हमारी पाम एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, हमारी पाम एक दूसरे को फेस करेंगी. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सुपर इम्पोजमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. सो हमारे थंब जो है दे आर पॉइंटेड आउटवर्ड्स. तो इन हमारे हैंड्स में सिमेट्री नहीं है. वी कांट सुपर इम्पोज आवर वन हैंड टू अनदर हैंड. दिस इज द कायरलिटी. कायरलिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल का आइसोमर दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इम्पोज ना हो सके, पूरे का पूरा उस मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर फिक्स ना हो सके. ऐसे मॉलिक्यूल्स को कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं. इसको हम बहुत सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कायरल कंपाउंड, लैक्टिक एसिड. इस कंपाउंड का मिरर इमेज देखेंगे तो कार्बन विल बी एट द सेंटर, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ऊपर रहेगा, हाइड्रोक्सिल विल बी ऑन दिस साइड, और यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन है. यहाँ पर जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, हम इसको पकड़ के इस तरह रखेंगे तो ये मीथाइल इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा. अब यहाँ पर देखें तो ये इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है. ठीक है. अब जब हम इसकी सुपर इम्पोजिंग की बात करते हैं, जब हम कायरलिटी की बात करते हैं, तो कायरलिटी इस मॉलिक्यूल में तभी होगी जब ये अपने मिरर इमेज के ऊपर इम्पोज नहीं, सुपर इम्पोज नहीं होगा. इस सुपर इम्पोजिंग के प्रोसेस में हम मॉलिक्यूल को एज सच पकड़ के इसके ऊपर नहीं रखेंगे, हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे. व्हेन वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री, तो इस मॉलिक्यूल का ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो इस मॉलिक्यूल का कार्बन विल बी रिमेन एट द सेंटर, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, मिथाइल इधर चला जाएगा, एंड हाइड्रोक्सिल विल अपवर्ड and carboxylic acid will be downward. So जब हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे तो मिथाइल के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल है और यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड इधर है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है. तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे. सो दिस मॉलिक्यूल इज
not superimposable on its mirror image, that's why it is a chiral molecule or optically active molecule. अब इन molecules में देखें तो हमने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि कौन सा molecule हमारे पास chiral है और कौन सा नहीं। तो chirality के लिए सबसे पहले molecule के अंदर मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए इन दो कंडीशन का पूरा करना जरूरी है, दैट कार्बन शुड sp3 हाइब्रिडाइज, दैट देयर शुड बी 4 सिग्मा बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, और दूसरी चीज दैट कार्बन शुड बी अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। सो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, fulfilling the first requirement for the compound to be chiral, and the second requirement, it should be attached with the 4 different compounds. So 1, 2, 3 and 4 different compounds are attached with this carbon, so this carbon is a chiral carbon. इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन sp3 hybridized है, बट अगर हम 4 molecules को देखते हैं तो these 2 molecules are identical, so that's why this carbon is not chiral. इस कार्बन की तरफ देखें तो ये कार्बन भी sp3 hybridized है, having 4 sigma bonds, no pi bond is present, and 4 different substituents are attached with the carbons. This carbon is also chiral carbon. To understand the proper concept of chiral center, let's have a look some examples. इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि ये कायरल सेंटर है तो इस कार्बन के साथ इस तरफ एक डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस तरफ एक डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल है और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो दिस ग्रुप इज हैविंग अ कायरल सेंटर एंड कायरल इन नेचर। लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमारे पास अगर ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल है, तो यहाँ पर एक डबली बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पर भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो दोनों तरफ एनवायरमेंट क्योंकि एक जैसा है, एक जैसी कार्बन अटैच है, तो ये सेम ग्रुप कंसीडर होंगे एंड दिस कंपाउंड इज नॉट कायरल। लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमारे पास 3 कार्बन विद इन अ चेन मॉलिक्यूल है। ये कार्बन बिल्कुल भी कायरल नहीं हो सकती बिकॉज इट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। व्हेन वी लुक एट दिस कार्बन, इस कार्बन के एक तरफ ये वाली चेन अटैच है और एक तरफ इसके 3 हाइड्रोजन हैं, तो ये भी नहीं हो सकती। इस कार्बन को देखें तो इसके भी 2 एक जैसे ग्रुप अटैच हैं, इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ ये चेन है, तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं हो सकती। तो दिस कंपाउंड इज नॉट कायरल बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सिंगल कायरल सेंटर। व्हेन वी लुक एट दिस कंपाउंड इज हैविंग दिस कार्बन जिसके एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ इसके हाइड्रोजन होगी, दूसरी तरफ इसके ये कंपाउंड है जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है और ये कंपाउंड भी है जो कि डिफरेंट है। तो दिस कंपाउंड इज हैविंग अ कायरल center and that's why this compound is chiral in nature. What are enantiomers? The last topic of the today's lecture. Enantiomers are the isomers of the optically active compound. वो compound जो optically active होते हैं उनके isomers को enantiomers भी कहते हैं। एनेंटियोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल जिस तरह हमने पहले पढ़ा अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री होगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, उसके एनेंटियोमर्स नहीं होंगे। अब एक मॉलिक्यूल के एनेंटियोमर्स हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, आइसोमर्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब एक मॉलिक्यूल के एनेंटियोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूल का अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि इसका एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। अगर एक मॉलिक्यूल का एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के ऊपर मुकम्मल सुपर इम्पोज हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा और उनको हम एनेंटियोमर्स नहीं कहेंगे, वो उसके। Look at this compound. When we draw the mirror image of this compound, ये ग्रुप हमारे पास इधर चला जाएगा और ये ग्रुप हमारे पास इधर आ जाएगा। So this group will come here and then the hydroxyl group, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ये मिथाइल, ठीक है। अब हम जब इसके सुपर इम्पोज होने की बात करेंगे तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, वी आर गोइंग टू रोटेट द मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास दोबारा से इधर आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को पकड़ के जब हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो इसका जो बैकवर्ड द प्लेन हाइड्रोजन ग्रुप है वो टुवर्ड्स द प्लेन आ जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बैकवर्ड द प्लेन चला जाएगा। डॉटेड लाइन यहाँ पर हमारे पास
बैकवर्ड द प्लेन है और वेज लाइन हमारे पास टुवर्ड द प्लेन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, डॉटेड और वेज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि these molecules are lying on this line, they are on the plane of symmetry, and this hydrogen is away from us and this hydroxyl is towards us, means this is the plane and one element is downward and one element is upward, away from us and toward us, and this is the plane. Dotted और wedge substituents को हम एक और एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में देखें, this bromine is towards the plane and this bromine is behind the plane। अब इसका ये मिरर इमेज है। इस मिरर इमेज में हमारे पास there is only the inversion of the position of the isomer। जब हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे एनेंटियोमर को, वन आइसोमर को दूसरे आइसोमर के ऊपर सुपर इम्पोज करने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल रोटेट होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल टूवर्ड्स द प्लेन था दैट विल गो टू बैकवर्ड्स द प्लेन, और जो मॉलिक्यूल बैकवर्ड द प्लेन था वो टूवर्ड्स द प्लेन आ जाएगा। अब इस आइसोमर को जब हम इसके मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो बैकवर्ड होगा उसी मॉलिक्यूल के ऊपर ब्रोमीन आके लगेगी, बट दैट ब्रोमीन इज टुवर्ड्स द प्लेन एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट विल बी बैकवर्ड द प्लेन। तो एक दूसरे के ऊपर तो आएंगे बट दे विल नेवर गेट सुपर इम्पोज बिकॉज वन इज टू बैकवर्ड द प्लेन एंड अदर इज टुवर्ड्स द प्लेन। सो दैट्स व्हाई these will be the enantiomers of this compound, और ये chiral compound होगा and molecule will have a symmetry inside it. So this is the way we can draw the enantiomers of the optically active compounds. This is all about the first lecture of stereochemistry. इस lecture में हमने stereochemistry के basic introduction about the PPL chirality, chiral center and enantiomers किस तरह से draw होते हैं उसके बारे में पढ़ा। इस lecture को आप revise देखें और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, बिकॉज आपके अगर इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आएंगे। जिसमें हम और ज्यादा प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे। So this is all about the first lecture of stereochemistry. Stay tuned and don't forget to watch the next lectures to have your maximum concepts regarding stereochemistry. Subscribe my channel and comment section में कमेंट करें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।